Hello everyone, welcome to the online class 7. Now today we will start from the chapter number 1, integers. Students, what is integers? The sum of whole numbers and negative numbers, it is known as integers. The sum of whole numbers and negative number, it is known as integers. क्या होता है स्टूडेंट्स इंटीजर्स? जो भी सम होता है किसका? होल नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का, इट इज नोन एज इंटीजर्स. नाउ होल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी इंक्लूड होता है, दैट इज नोन एज होल नंबर्स. होल नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. In whole numbers, 0 is also included with natural numbers. It is known as whole number. What is integer? The sum of whole numbers and negative numbers. It is known as integer. Students, integers may be positive or negative. Integers जो है वो positive भी हो सकते हैं और negative भी. But 0 is neither positive or nor negative. 0 is neither positive nor negative. Integers can be either positive or negative. I repeat it again, students. Integers, the sum of whole numbers and negative numbers, it is known as integers. What is whole number? It means natural numbers and 0 is also included. It is known as whole numbers. 0 is neither positive nor negative. But जो 0 है वो ना ही positive है और ना ही negative है. Integers can be either positive or negative. Students, जो positive integers होंगे वो हम उसे कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4 and so on. But negative integers को हम कैसे लिखेंगे students? -1, -2, -3, -4 and so on. Understand students? If you want to write the definitions and meaning of integers, you can write. Now move to the chapter. We have learned about whole numbers and integer in class 6. Students, आपने whole number और integers previous class में भी read किया है. Still, I have give you definitions. We know that integers form a bigger collection and which contain whole numbers and negative numbers. Integers क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, जो whole numbers होते हैं और negative numbers को large collection में contain करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? Integers. What other difference do you find between the whole numbers and integers? आपने क्या difference देखी whole numbers और integers में? Student, whole number में 0 include नहीं होता है. whole numbers में 0 include होता है and natural numbers also. But in integers, both negative and positive also included. In this chapter, we will study more about integers. In this chapter, we will study more about integers. हम और भी आगे integers के बारे में पढ़ेंगे. Their properties and operation. और हम क्या क्या पढ़ेंगे integers के बारे में और properties and operation. First of all, we will review and revise what we have done integers in our previous class. हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में इंटीजर्स में क्या क्या पढ़ा. लेट्स स्टार्ट. Recall. We know how to represent integers on a number line.
स्टूडेंट्स आप सबने प्रीवियस क्लास में सीखा है कि इंटीजर्स को हम कैसे मार्क कर सकते हैं नंबर लाइन पे. दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द नेगेटिव साइड, बट जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. जीरो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है. कैन यू राइट दिस मार्क इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर? द असेंडिंग ऑर्डर्स दिस नंबर is -5, -1 and 3. Students, one more important thing, जो भी नेगेटिव नंबर है वो जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा इंटीजर होगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर -5, -1 and 3. You have to write in ascending order. Students, आपको ये किसमें लिखना है? ascending order. We can write -5, then -1 and then 3. This is ascending order. What is the meaning of ascending order? It means स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. तो सबसे स्मॉल नंबर कौन से स्टूडेंट? -5, देन -1 एंड 3. और इफ वी कंपेयर बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विल बी बिगर. नाउ मूव टू द डिसेंडिंग. द डिसेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ दिस इंटीजर इज 14, 8, 3. These numbers are in positive 14, 8 and 3. This is the bigger number. What is the descending order? It means greatest to smallest. The above number line has only a few integers filled with appropriate numbers at each dot. You can see in this number line 14, 8 and 3. This is descending order. This is positive and this is descending. Now move to the next page. Number line representing integers is given below. -3 and -2 are marked by E and F respectively. Which integers are marked by D, H, J, M, O? Students, we have to tell the integers marked by B. B पे कौन सा integer है वो हमको बताना है. Arrange 7, -5, 4, 0 and -4 in ascending order. Students, we have to write this equation in ascending order. Let's start. -5, then -4, then 4 and then 7. This is the ascending order. It means छोटे से बड़ा. Move to the next one. We have done addition and subtraction of integers in our previous class. स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लास में एडिशन और सबट्रैक्शन किया किसका? इंटीजर्स का. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन अ नंबर लाइन. व्हेन वी एड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट. हम जब भी कोई पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो हम कहाँ मूव करते हैं? फ्रॉम द राइट हैंड साइड. दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड. एड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू दी लेफ्ट. अगर हम जब भी नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते तब हम कहाँ मुड़ते हैं स्टूडेंट्स? टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड. सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू दी लेफ्ट. इफ वी सब्ट्रैक्ट द पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टूवर्ड्स दी लेफ्ट. सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू दी राइट. इफ वी सब्ट्रैक्ट नेगेटिव इंटीजर वी मूव टूवर्ड्स दी राइट. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई रिपीटेड अगेन. एड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू दी राइट. अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते तो हम कौन से साइड में जाते हैं? दैट इज दी राइट हैंड साइड. एड अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टू दी लेफ्ट. इफ वी एड नेगेटिव इंटीजर वी मूव टूवर्ड्स दी लेफ्ट साइड. सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू दी लेफ्ट हैंड साइड. अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते तो हम कहाँ जाते? टूवर्ड्स दी लेफ्ट. Subtract a negative integer. If we subtract a negative integer, we move towards the right. Next, state whether the following statements are correct or incorrect. Correct those which are wrong. Students, this is your homework. You have to tell whether the statements are correct or incorrect. Now, compare your answer with the answers given below. For example, स्टूडेंट्स, दे बोथ आर पॉजिटिव. 56 प्लस 73, तो इसका आंसर भी किसमें आएगा? इन पॉजिटिव. दे बोथ आर ऑल्सो पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी किसमें आएगा? पॉजिटिव इंटीजर. यू कैन सी इन दिस इक्वेशन. कंस्ट्रक्ट 5 more examples in support of this statement. Incorrect. This number is negative and this number is also negative. But
You can see in those number there are sign between them, that is plus. Students, plus minus minus, ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, बट अगेन माइनस माइनस प्लस, तो 7 प्लस 6 दैट इज 13. बट हमने यहाँ पे साइन क्यों माइनस का लगाया, क्यों, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6 और जो बड़े नंबर के आगे साइन होगा वही हम साइन लगाएंगे, विच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर. द करेक्ट स्टेटमेंट इज when two negative integers are added we get a negative integer. अगर कोई दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो किसमें होगा, नेगेटिव इंटीजर. इफ व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, आप देख सकते हो ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स थे, हम दोनों ने इसको ऐड किया तो हमारा इसका रिजल्ट किसमें आया स्टूडेंट्स, रिजल्ट आया हमारा नेगेटिव इंटीजर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. Okay, correct some other examples of additive inverse are given below. Students, there are some additive inverse. Students, क्या होता है additive inverse? अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो हम उसको अगर एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव. और अगर कोई नेगेटिव नंबर है अगर हम उसको एडिटिव इनवर्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. यू कैन सी इन दिस टेबल, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिटिव इंटीजर, तो ये क्या बन गया, -10. नेक्स्ट, दिस इज द -10, ये -10 का इंटीजर था, ये एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट होके क्या बन गया स्टूडेंट्स, दैट इज 10. 76, you can see -76. For more examples, you can see if we write 10, तो ये क्या बन जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, that is -10. Next, 12, additive inverse of 12, that is -12. If I am writing here -13, additive inverse of -13, it will be 13. If I am taking additive inverse of 15, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, you have to tell me. Okay, this is your homework. Now move to the next one. Write at least 5 such example to verify this statement. Thus we find that for any two integers a and b. Students, you can see a minus b, where a क्या है, additive inverse, और माइनस बी क्या है, नेगेटिव इनवर्स. यू कैन सी इन दिस इक्वेशन a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b इक्वल्स टू a एडिटिव इनवर्स, और ये क्या हो गया, माइनस b. नेक्स्ट, a माइनस माइनस b इक्वल्स टू a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस b. अगर मैं बोलूं कि माइनस b का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इट विल बी पॉजिटिव, दैट इज a प्लस b, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू हैव टू राइट दी एडिटिव इनवर्स ऑफ b, तो वी विल राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ b का ये माइनस b है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी पॉजिटिव. मूव टू द नेक्स्ट वन. इनकरेक्ट, -10 प्लस 3. स्टूडेंट्स, ये -10 है और ये 3 पॉजिटिव का इक्वल्स टू, तो जब 10 - 3 क्या होगा स्टूडेंट, 7. बट जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, -7. क्यों हुआ -7, क्योंकि 10 बड़ा है एज कंपेयर टू 3, तो 10 के आगे किसका साइन है स्टूडेंट्स, माइनस का, तो आंसर 7 आएगा. बट हम साइन कौन सा पुट करेंगे, दैट इज माइनस, इट विल बी नेगेटिव इंटीजर. मूव टू द नेक्स्ट वन. We have done various patterns, write numbers in our previous class. Can you find a pattern for each of the following? If yes, complete them. Students, this is your homework. You have to complete these patterns in your next book. Let's start with the exercise. Following numbers line shown the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day. Students, आपको कुछ यहाँ पे temperatures दे रखे सेल्सियस में. We also number line is also given. Observe the number line and write the temperatures of the places marked on it. Students, आपको यहाँ पे number line दे रखी है और उस पे कुछ temperatures है. We have to mark them. Let's start with the first question. A part. Observe this number line and write the temperature. First, we start from the Bangalore. The
the temperature at Bengaluru स्टूडेंट्स बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है यहाँ पे 20, 21, 22 दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये क्या है 22 डिग्री सेल्सियस। बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूव टू दी ओटी। द टेम्परेचर एट ओटी क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 10, 11, 12, 13, 14 इट विल बी 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स दी शिमला। द टेम्परेचर एट शिमला the temperature at शिमला क्या है टेम्परेचर शिमला का स्टूडेंट्स दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। वी विल राइट हियर 5 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूव टू दी श्रीनगर। द टेम्परेचर एट श्रीनगर it will be, you can see this is the positive side and this is the negative side. So श्रीनगर का टेम्परेचर कैसे स्टूडेंट्स 1 -1 that is -2। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। Now move to the next one. The temperature at Lahul Spiti। Lahul Spiti वहां का टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। यू कैन सी इन दिस नंबर 9 यू कैन सी दिस इज -5, -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स -8 डिग्री सेल्सियस। -8 डिग्री सेल्सियस। Students, you have to write this question and answer in your maths notebook. You have to solve all these questions in your maths notebook. Okay, तो first हमारा A part हो गया। The temperature at Bengaluru equals to 22 degrees Celsius. That is positive. The temperature as OT equals to 14 degrees Celsius. It is also positive. The temperature at Shimla equals to 5 degrees Celsius. The temperature at Srinagar that is -2 degree Celsius. The temperature at Lahul Spiti it was -8 degree Celsius. Now move to the B part. What is the temperature between the hottest and the coldest places among the above? Students, with the help of this table we can find the hottest and the coldest temperature. The hottest temperature of Bengaluru and the coldest temperature of Lahul Spiti. We can write B part hottest temperature equals to 22 degrees Celsius. Coldest temperature equals to -8 degree Celsius. Students, we have to find the difference between them. It will be 22 degrees Celsius, 22 -8. स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। 22 माइनस माइनस
स्टूडेंट्स क्या होता है माइनस 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 प्लस 22 प्लस 8 इक्वल्स टू 30 डिग्री सेल्सियस। यही आपका करेक्ट आंसर है। मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स आपको मेरे साथ ही ये सारा वर्क आपकी मैथ्स नोटबुक में करना है। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मूव टू दी नेक्स्ट वन। सी पार्ट। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। स्टूडेंट्स अब हमको लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मूव टू दी सी पार्ट। द टेम्परेचर एट लाहौल स्पीति इक्वल्स टू, लाहौल स्पीति का क्या टेम्परेचर था, डेट इज -8 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर एट, कौन सा टेम्परेचर बोला है, श्रीनगर। स्टूडेंट श्रीनगर का क्या टेम्परेचर था, श्रीनगर का टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। -8 -2, स्टूडेंट्स अगेन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज -6 डिग्री सेल्सियस। अब स्टूडेंट्स मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया है, बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन, कौन है बड़ा नंबर, कौन सा 8, और 8 के आगे किसका साइन है स्टूडेंट, माइनस का, दैट्स व्हाई वी पुट हियर -6 डिग्री सेल्सियस। मूव टू दी नेक्स्ट वन। कैन वी से टेम्परेचर एट श्रीनगर and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. It is also less than the temperature at Srinagar. Students, हमको ये बताना है कि श्रीनगर और शिमला को अगर हम टुगेदर लेके उनका डिफरेंस निकालते तो क्या है, टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। लेट्स स्टार्ट विद दी डी पार्ट। स्टूडेंट्स टेम्परेचर क्या है श्रीनगर का, टेम्परेचर एट श्रीनगर क्या है, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट शिमला, टेम्परेचर एट शिमला, स्टूडेंट शिमला का टेम्परेचर क्या है, आप नंबर लाइन में देख सकते हो, शिमला का टेम्परेचर है 5, दैट इज पॉजिटिव। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर एंड शिमला। दिस इज 5 -2, माइनस माइनस प्लस, that is 7 degree Celsius. Okay, students, you have to do this question in your maths notebook A, B, C and D. In our next class, we will discuss from the second question. That's all for today. Thank you, students.